Good morning, students. Welcome back to maths class. Today, we will discuss integration by parts. Yesterday, we have discussed that is how to integrate if we have given product of two functions. So you already know that is derivative of product rule, that is u into v are two function. So first into second means derivative of this, first into derivative of second plus second into derivative of first, that you know. And now you know all that integration is the reverse process of derivative. So integrating both sides, you know this. So if you integrate both sides, then what happens? This integration and derivative cancel, you will get simply uv. Clear? Derivative and integration cancel, and here as usual integration sign u into dv upon dx, and here also as usual this. So transfer one of the term to the left hand side, this term say to the left hand side, or it may be here, and transfer this uv to the right hand side. So what you will get, u into dv upon dx, uv here, then transfer this term. Clear or not? b into du upon dx. So that comes out to be minus. So beta to here, understand this concept. I have already told to you that how to integrate now. Now see, let this function is first function fx and dv upon dx as gx. अगर बेटा u आपके पास fx है तो डेरिवेटिव ऑफ u बन जाएगा f डैश x, और यहाँ dv अपॉन dx दिया है और इसको मैं बेटा इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, तो यू नो इंटीग्रेशन ऑफ dv ये लाइक दिस, dv equal to integration of gx dx. So what you will get? dv is nothing but v. Integration of 1 is v. So v equal to integration of gx dx. That is why I have written इसको integrate करके लिखा गया. v equal to this. और यहाँ u है तो यहाँ से derivative. So from here बेटा you can now find, ये आपके पास first function u, first function को आप क्या कह रहे हैं? f of x. Second function dv upon dx को हम क्या कह रहे हैं? g of x, and this become dx. So now this become a product rule. And what is the product rule? Now see uv, u as usual means f of x as usual into v. What is v? v is nothing but, ये देखिए इस v की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, v is nothing but integration of g of x dx. सेम वे पे आगे माइनस, व्हाट इज v? अगर v को आप देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स है, डी यू अपॉन डी एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स. तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ एफ डैश एक्स, और v की वैल्यू मेरे पास बेटा वही है इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx एंड होल dx. ठीक है, प्लस ये अपने पास वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वन टाइम अपने यूज करना. So now see this become a product rule, first into second, first into integration of second, minus whole integration derivative of first integration of second. You can see here, this one is first and ये second. तो वे बेटा याद रखना है, first into integration of second minus integration of whole integration. ठीक है, ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है, मतलब इसको पहले कह लो, ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जी एक्स डी एक्स, इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है. ठीक है, रीड करने में आपको ऑलरेडी बता दिया, द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integral of second function. So now see the question how to do the integration. ठीक है, तो देखो बेटा ये आपके पास find integration of x cos x dx. So here x is a first function as usual and cos x as second function.
So use the rule. First, as usual, integration of second, integration of cos x dx minus integration of derivative of first, derivative of x into integration of second, that is cos x dx. This is nothing but this become x sin x minus integration of derivative of x is 1 or cos x integration beta you all know sin x dx or further integrate okay x sin x plus cos x plus. अब आप लोग अपने आप देख सकते हैं जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ठीक है तो यही मिल जाएगा x cos x जैसे डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या बनेगा cos तो x cos आ गया और आगे sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ जाएगा और आगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन होगा तो साइन से साइन कट हो जाएगा और c का डेरिवेटिव यू ऑल नो वो 0 होता है। ओके बेटा यहाँ एक पॉइंट और नोट करने का है अगर आप लोग देखें जो स्पेशली आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा अगर मैंने फर्स्ट फंक्शन x को ना लेके cos x को लेता तो क्या प्रॉब्लम आती है देखो अगर मैं fx cos x लेता और gx है तो देखो होना क्या था cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x ठीक है सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सो दिस बिकम cos x x square by 2 plus integration of sin x x square by 2 dx ठीक है ना x की इंटीग्रेशन x square by 2 cos की माइनस साइन तो प्लस बन गया। अब आपके पास it shows that the integral x cos x is reduced to the comparatively more complicated integral more power। देखो ना पहले तो ये सिंपल था x cos x लेकिन अब जो आपके पास बचा वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया sin x into x square। So therefore the proper choice of first function and second function is significant ठीक है तो इसके लिए हम बेटा फर्स्ट फंक्शन की चॉइस को डिपेंड करता है कि हमें फर्स्ट फंक्शन कौन लेना है तो जनरली हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं नंबर 1 जिसका हमें डेरिवेटिव आता है। अच्छा पहले आपको मैं रिमार्क उसके बाद मैं आपको सिंपल रूल बताऊंगा कि कौन सा फर्स्ट चूज करना तो रिमार्क पे एक पॉइंट आप इसको जरूर देखिए इट्स वर्थ मेंशनिंग दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ इन ऑल केसेस। बोलने का मतलब अगर आप सोचे कोई भी फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होगा और आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये दे दिया अंडर रूट एक्स साइन एक्स डी एक्स अब इसमें आप जो मर्जी फर्स्ट फंक्शन ले लो आप बेटे इस इंटीग्रेशन को कर ही नहीं पाए। द रीजन इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज दिस। अब बोलने का मतलब रीजन सिंपल है क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव का तो इसका मतलब ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा इसलिए इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो रही है। तो मेरा बोलने का मतलब इसको आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते चाहे आप फर्स्ट इसको लो चाहे इसको लो तो इस तरह की भी सिचुएशन आपके पास रहेगी। तो इंटीग्रेशन में इसीलिए हमारे पास मैं जब बार बार आपको कहता हूँ कि इंटीग्रेशन समटाइम डिफिकल्ट क्योंकि इसका अपना कोई प्रॉपर रूल नहीं है बेसिक डेफिनेशन नहीं है जस्ट ए रिवर्स प्रोसेस है कि हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आता है और हम उसको उल्टा करके करेंगे तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर जी एक्स है तो जी एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स हो जाएगा। ऑब्जर्व दैट व्हाइल फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन बी डिड नॉट ऐड एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप लोगों को यहाँ पर देखें कि जब मैंने cos x का इंटीग्रेशन किया तो sin x बोलने के मतलब यहाँ भी इंटीग्रेशन किया यहाँ भी तो इसका मतलब कई बार कैंडिडेट हमारे से पूछ रहे थे सर यहाँ क्यों नहीं आपने कांस्टेंट लिखा। तो देखो इसको इसी क्वेश्चन को यहाँ पर समझाया हुआ है आप लोगों को जस्ट सी है ये है आपके पास x cos x तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इसने देखो sin x प्लस कांस्टेंट ले ली ठीक और सेम वे पे माइनस x का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं 1 होता है और इंटीग्रेशन ऑफ cos x के ले ली sin x प्लस के मतलब बीच में भी ले लिया। अब हुआ क्या बेनिफिट देखो x sin x प्लस के एक्स यही बनेगा और यहां से माइनस साइन एक्स dx और माइनस के एक्स ठीक हो गया। तो अब क्या होगा बेटा अगर यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे x इंटू साइन एक्स बनेगा प्लस के एक्स बनेगा और यहाँ इसकी इंटीग्रेशन माइनस के एक्स कैंसिल हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका मतलब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन है दैट बिकम माइनस cos x प्लस c। तो इसलिए आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ लास्ट में ही यूज करना
इन बिटवीन यूज करने की जरूरत नहीं। जैसे ये हमने स्टेप लिखा था, ये देखो x, यहाँ मैंने कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज किया, यहाँ कोई नहीं यूज किया, सिर्फ साल लास्ट में कंप्लीटली एक सी यूज किया। तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ नहीं है कि बार बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, जस्ट वन टाइम यूज कर। ठीक है, ये आपके पास कुछ एक पॉइंट। अब आगे इसमें और ये कह रहा है दिस शोज दैट द एडिंग अ कांस्टेंट टू द इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इज सुपरफ्लुअस सो फॉर as the final result is concerned while applying this method of integration by part. तो आगे क्या कह रहा है कि if any function is power of x or polynomial in x, then we take it as first function. However, in case where the function is inverse trigonometric function, logarithmic function, then we take them as a first function. तो इसको मैं बेटा थोड़ा सा आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपने इंटीग्रेशन को चूज करना है बेटा, ये है तो प्रोडक्ट रूल में कि फर्स्ट फंक्शन कौन चूज किया जाए, आपने इस वर्ड को याद रखना, आई लेट, LAT, इसको माइंड पे रखना। मतलब फर्स्ट फंक्शन में जो लेटर फर्स्ट आ रहा है वही अपने फर्स्ट लेंगे। अब आपके पास टू फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, कौन कौन से? आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर हो गया। और एल मीन्स लॉगरिथमिक, टी में ए मीन्स अलजेब्रिक अर्थमेटिक, ठीक हो गया। और टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो बेटा ये आपने ध्यान रखना बोला। और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो फंक्शन अब आपके पास बेटा फर्स्ट आ रहा है, आई इनवर्स, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, ई ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल, तो जनरली इनमें से कोई दो आपके पास होंगे। जैसे आपके पास सिचुएशन आ गई इनवर्स और एक्सपोनेंशियल, इनवर्स को फर्स्ट लेना, एक्सपोनेंशियल को सेकंड, या लॉगरिथमिक है फिर एक्सपोनेंशियल है तो लॉगरिथमिक फर्स्ट। ये आपके पास अलजेब्रिक और अर्थमेटिक है, ठीक है, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपने इसको फर्स्ट लेना। तो बोलने का जो लेटर आपका फर्स्ट आ रहा है उसको आपने चूज करना है, तो इसलिए आपने पहचानना है। जैसे मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया कि x sin x, तो ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक, तो किसको फर्स्ट लेंगे? आइलेट, आइलेट के हिसाब से आपके पास विच वन इज फर्स्ट, वो आप देख सकते हैं, अलजेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। वे अभी आपको समझा दिया, इसमें क्या करना है, कैसे करना है। dx हियर यू कैन राइट x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ठीक है, पहले आप स्टार्टिंग में कंप्लीट स्टेप लिख लो, बाद में आदत पड़ जाएगी तो शॉर्टकट में लिख लिया जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, यू ऑल नो, इनटू साथ में इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। कांस्टेंट मैंने बोला बाद में ही लगाना है, तो x sin x की इंटीग्रेशन यू ऑल नो दैट इज cos x, माइनस cos x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x दैट इज माइनस cos x। सो सेम यार, ये माइनस क्योंकि sin x की माइनस cos होती है तो ये प्लस हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, एंड हियर इंटीग्रेशन ऑफ sin क्या आई, माइनस, तो बाहर में प्लस लगा लिया dx, और ये अगेन इंटीग्रेशन। Now you can do this, beta. What is this? Minus x cos x, and integration of cos x is nothing but
साइन एक्स प्लस ही रहेगा प्लस सी। ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन हो गया। अब आपके पास जो मेजर है, जैसे अभी तक आप लोगों ने बेटा लॉग एक्स की इंटीग्रेशन नहीं, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग। अब log x की इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास डायरेक्ट मेरे को नहीं पता है कि log x किसका डेरिवेटिव था, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, ठीक है। log x में आप सेकंड फंक्शन 1 ले लें, क्योंकि log की मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आती है, तो इसलिए इसको फर्स्ट रखेंगे और 1 को सेकंड। और रूल आपको ये जस्ट लर्न करने के लिए है बेटा, ये है जहाँ दोनों चीजें पॉसिबल है ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आपके आइलेट में 1 जो ले लिया गया मैंने, वो कौन सा फंक्शन लिया, अर्थमेटिक, और लॉग इसका मतलब फर्स्ट होगा और ए अर्थमेटिक दैट इज सेकंड, ठीक है। अलजेब्रिक भी आप कह सकते हैं। तो लॉग एक्स इंटू 1, अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, log x एज यूजुअल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x मैं शॉर्टकट में लिख दिया 1/x, डेरिवेटिव लिखा है किसका, log x का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x लिख दिया मैंने शॉर्टकट, dx। मैंने बोला जब आपको थोड़ी हैबिचुअल पड़ जाएंगे तो याद रखो, अगर कहीं पता ना लगे तो दोबारा सुन लिया करो रिवर्स करके। क्या किया फिर सुन लो, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ 1, अभी तो यहाँ लिख लिया लेकिन आगे कर दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x integration of 1 that is x, and now see this x and x again cancel, so this become dx की इंटीग्रेशन बेटा x मतलब 1 की इंटीग्रेशन, तो ये बन गया x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 that is x and plus c। तो ये आज हम देखो इंटीग्रेशन ऑफ log x निकाल पाए। इंटीग्रेशन ऑफ log x is nothing but x log x minus x plus c, ठीक हो गया। अब ऐसे ही अगर आपके पास जैसे इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए, इसको इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर इंटू log x, इंटीग्रेट दिस, तो बेटा अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने कहा बस कुछ नहीं करना, रूल को फॉलो करना। रूल को अब क्या फॉलो करना, अपने आई लेट इस पे फोकस करना है। तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, अलजेब्रिक सेकंड, तो log x ही फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा, क्योंकि log का मेरे को वैसे भी याद रखने का सिंपल वे होता है कि log की मेरे को इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता नहीं है, ठीक है। सो log x इंटू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन log x स्क्वायर हो गया dx, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज यूजुअल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिख दो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन, व्हाट यू विल गेट दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा एज यूजुअल, ठीक है। तो इसको बस समझते चलो, एक्स स्क्वायर में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सॉरी नॉट एज यूजुअल, आप क्या लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई एक्स क्यूब अपॉन 3। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन log x का डेरिवेटिव दैट इज 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। नाउ सी 1x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बच जाएगा और 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ये मिल गया बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3 log x, ठीक है, माइनस 1/3 आपका आउटसाइड आ गया, और ये एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अगर फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये प्लस सी। नाउ यू कैन सी, अगर इसमें कॉमन देख रहे हैं आप तो क्या कॉमन है, ले लो एक्स क्यूब अपॉन 9 बाहर ले लो, यू विल गेट यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 है नीचे कॉमन, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड होके 3 log x माइनस 1 प्लस, ये देख लो। इस तरह कोई भी आपके पास एक्स स्क्वायर या पोलिनोमियल फंक्शन होगा log के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ऐसे हो सकता है, कुछ भी है, तो यू कैन इंटीग्रेट दिस, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट।
ऐसे ही देखो बेटा, ये प्रोसेस आपके पास इसमें भी रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ। जैसे देखो, पहला एक्स के साथ किया था, अगर मेरे से पूछा जाए एक्स स्क्वायर साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो, तो आइलेट के हिसाब से आइलेट अगर इसको देखेंगे बेटा, तो अलजेब्रिक की फर्स्ट आएगा, ये फर्स्ट ही रहेगा। तो इसकी इंटीग्रेशन एज यूजुअल क्या, एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, 2 मैंने बाहर लिख दिया x, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आएगी, तो इसलिए बाहर प्लस कर दिया ये। तो अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, और फिर से बेटा प्रोडक्ट रूल बन रहा है, तो एक बार फिर प्रोडक्ट रूल लगाइए, कोई बात नहीं, और ये चल पड़ा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस आउटसाइड, और फिर से वही फर्स्ट फंक्शन एक्स ही आएगा क्योंकि अलजेब्रिक ही आएगा, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस दैट इज साइन एक्स माइनस integration of derivative of x that is 1 and integration of cos x that is sin x dx. I think you got this point. अगर ये बेटा समझ आ गया तो आगे चलिए, आगे क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन एक्स की इंटीग्रेशन फिर से नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव ही आएगा, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस, तो ये बेटा आप डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गई किसकी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स की। तो यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है। अगर क्यूब होगा तो इस तरह से 3 स्टेप में चला जाएगा, एक बार फिर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते चलिए, ठीक है। आपकी बुक में आ जाता हूँ, देखो लॉग एक्स की तो इंटीग्रेशन मैंने बता दी, लॉग फर्स्ट लो, बोलने का सिंपल वे ये भी होता है कि जिसका आपको डेरिवेटिव नहीं आता उसको फर्स्ट ले, ठीक है। आगे देखो x इंटू ई रेज्ड पावर, x इंटू ई रेज्ड पावर x आई लेट, तो ए को आप अलजेब्रिक फंक्शन और ये ई एक्सपोनेंशियल, तो इसका फर्स्ट फंक्शन x ही लिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वो ई एक्स ही आएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 ई रेज्ड पावर x डी एक्स ई एक्स माइनस, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे ई एक्स प्लस सी, और इसमें भी अगर ई रेज्ड पावर x कॉमन लेते हैं तो इनसाइड यू विल गेट x माइनस 1 प्लस सी, ठीक हो गया। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा। अब बेटा यहाँ पर वैसे ही, अब जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस, वैसे तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा इजिली, आपको बताया गया जब ऐसी सिचुएशन होगी तो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आएगी। तो अभी तो ये पूरा इसी को कह रहा है कि इसको आप फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, नहीं सॉरी, इसको आप सेकंड ले पाएंगे, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स का भी आपको नहीं आता, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट लेंगे और सेकंड इसको लेंगे, जैसे यहाँ मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी अलग से फिर करते हैं। बट ये देखो इसने पुट ही कर लिया, पुट क्यों की करके बताया आपने, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप सेकंड की करेंगे तो ये एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा मतलब 2x, और ये वो बनना चाहिए तो 1/2 ले लेंगे, बाहर माइनस ले लेंगे, माइनस बन जाएगा, फिर आपके पास फंक्शन रेज्ड पावर n का फार्मूला लगेगा। जस्ट मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो एक्स डी एक्स, इसको इसने t पुट किया तो -1/2 dt अपॉन दिस, और ये t की पावर -1/2 की इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या करनी है, -1/2 प्लस 1, तो वो 1/2 बन जाएगा, 1/2 से 1/2 कट, और ये ठीक है। तो ये देखो इसने यही लिखा, अब इसको फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स को लिया और सेकंड की इंटीग्रेशन ये, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आपका ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी बनी हुई है, तो बेनिफिट क्या हुआ, ये कैंसल, -1 बना, -1 की इंटीग्रेशन दैट इज -x, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस। तो सिंपल वे पे इसने स्टेप लिखे। लेकिन बेटा इसी क्वेश्चन को बेटर ऑप्शन यही है जो ये जो अल्टरनेटिवली इसने लिखा है कि आप इसको ऐसे करो। तो मैं इसको खुद बता देता हूँ आपको वहां बोर्ड पे ही क्लियर करके। क्या था आपके पास क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है आपके पास क्या, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब बेटा आपने इस सब्स्टिट्यूशन को करेंगे आप, ठीक है, एक्स साइन, तो मैंने बताया इंटीग्रेशन, जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखे, मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होगी तो पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, या सीधा ये यहाँ साइन इनवर्स एक्स भी आइडिया दे रहा है। अगर मान लो कॉस होता तो मैं कॉस इनवर्स एक्स को थीटा पुट, ठीक है। तो बोलने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स को आप क्या पुट कर लो, थीटा, ठीक है। ये लिखो या फिर ऐसे लिख लो कि और x इक्वल टू साइन थीटा, कुछ भी लिखिए, दोनों में से एक लिख लो। अभी जैसे ये लिखा है तो मैंने यहीं से चल पड़ता हूँ, डेरिवेटिव करो। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बेटा आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये dx चेंज होता है, तो इसलिए जो भी पुट किया होता है उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू डी। तो बेटा ये टर्म मेरे को नीचे दी हुई है, इसका मतलब इस पूरी की वैल्यू डी थीटा, एक्स की वैल्यू मेरे पास, इसको सपोज ये आई है, तो आई क्या बन गया आपके पास, आई इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, यस आवाज, एक्स किसके इक्वल बन गया, साइन इनवर्स एक्स थीटा, तो एक्स इज नथिंग बट साइन थीटा, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, थीटा के, और डी एक्स अपॉन दिस, ये सारा डी थीटा। लो इजी क्वेश्चन बन गया। अब यही तो मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया था, एक्स साइन एक्स, ठीक है। और इसका आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन लेना है, थीटा लेना है, तो इट कैन बी रिटन थीटा इनटू साइन थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेट बेटा दिस, थीटा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस बाहर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा फर्स्ट की 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दैट इज माइनस आएगा तो प्लस हो गया कॉस थीटा डी, ठीक हो गया। इसको फर्दर एक स्टेप लिख लो, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा, प्लस में रहेगी प्लस सी। नो बेटा सी है, थीटा क्या है आपके पास, थीटा हमने पुट किया था, ये देखो थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, मैं लिखूंगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के, सो कॉस थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के, प्लस, देख लो सिंपल वे से आपको आंसर मिल गया। देखिए यही आपके पास इधर आंसर है। You can see x minus under the root 1 minus x square sin inverse x plus c, यही मेरा पास है, x minus under the root 1 minus x square sin inverse x plus c। तो बेटा इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ डिफरेंट वे से। क्वेश्चन है आपके पास e रेज्ड पावर x, ठीक है। वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाऊं मैं पहले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अब आप सारे इनवर्स के बेटा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जैसे अब आपके पास क्या कि हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ
साइन इनवर्स एक्स। एक को देख लो, बाकी आपने बिल्कुल वैसे ही करना। ठीक है, तो बेटा इसको आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं या डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं। तो मैं तो अभी यही बोलूंगा कि बेटर है आप सब्स्टिट्यूशन पुट क्या x इक्वल टू साइन थीटा। अगर यहाँ cos इनवर्स x होगा तो पुट x इक्वल टू cos थीटा। सो व्हाट इज dx? dx इज साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा। ये आई है बेटा। सो व्हाट हैपन, दिस आई बिकम, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, साइन इनवर्स x क्या हो गया? साइन इनवर्स x थीटा बन जाएगा। साइन इनवर्स x इज थीटा, क्योंकि x साइन थीटा है, सो थीटा इज साइन इनवर्स x। और dx क्या है आपके पास? cos थीटा d थीटा। सो नाउ बेटा ये आपको मैं फिर वही x cos x वाला जैसे क्वेश्चन किया, दैट यू नो, बिल्कुल आराम से। फर्स्ट फंक्शन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा दैट इज माइनस साइन प्लस साइन थीटा ही होती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा is 1 and integration of cos theta that you know sin theta। ठीक हो गया, d थीटा। आगे फिर से नेक्स्ट, व्हाट इज थीटा? थीटा इज नथिंग बट, अभी एक स्टेप लिख लो, थीटा sin theta minus integration of sin theta is minus cos theta, so this become plus cos theta plus। अब बेटा इसको x में चेंज कर दो, तो x में चेंज करना, थीटा मीन्स साइन इनवर्स x, क्योंकि मैंने साइन x को थीटा पुट किया है, देखो साइन थीटा को x, तो थीटा इज साइन इनवर्स x। और थीटा की वैल्यू आपको मिल गई, बट व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा आप लोग लिख सकते हैं दैट इज x प्लस कॉस थीटा को चेंज कर दो साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, रीअरेंज करके लिखना है तो x इंटू साइन इनवर्स x प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। समझ गए? अब इसका मतलब आज के बाद अब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टी रेशो के इंटीग्रेशन भी निकालना है। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स का किया, वैसे ही मैं आपको टेन इनवर्स एक्स का बता देता हूँ एक, बाकी आप खुद करेंगे। लास्ट बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो सिंपल वे बताया मैंने, जो भी टी रेशो है वो ही पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। व्हाट इज डी एक्स? dx is derivative of tan theta, yes, secant square theta d theta। We got this point? तो it means अब बेटा ये चेंज हो जाएगा, क्या i इक्वल टू, अगर आप देखें ये i है, ये चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स x तो बन गया आपका थीटा, और dx की वैल्यू है आपके पास बेटा secant square थीटा d। ओके, तो अब फिर आई लेट में आ जाओ, आई लेट, फिर वही बात आएगी बेटा, ये अलजेब्रिक फर्स्ट, इसी को फर्स्ट लेना है और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। सो यू विल गेट थीटा इनटू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ थीटा? 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज tan theta and here d theta। So now theta into tan theta minus इंटीग्रेशन ऑफ tan theta, you know, ठीक है, log ऑफ, याद होगा क्या होता है, secant theta, log ऑफ secant theta
या तो लॉग कॉस में होती है तब माइनस बाहर आता है, ठीक है। अभी मैंने सेकंड में ही लिखी तो प्लस होता है, प्लस। नो बेटा चेंज कर दो इसको, किसमें, फिर से एक्स में। बड़ी थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से देख लो क्या आएगी, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स एक्स, ये बता रहा है, थीटा इज tan इनवर्स एक्स। ये वैल्यू यहां पुट कर लो, tan इनवर्स एक्स एंड tan थीटा की वैल्यू दैट इज एक्स, देख लो x tan थीटा माइनस log ऑफ व्हाट इज secant थीटा। बेटा secant थीटा को अब आप चेंज करेंगे किसमें, tan में। तो secant थीटा क्या होता है, अंडर द रूट secant स्क्वायर थीटा होता है। यस शाबाश, आइडेंटिटी अगर आपको याद है, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस x स्क्वायर प्लस, ये आपके पास इसकी किसकी इंटीग्रेशन आ गई, tan इनवर्स x, क्या x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ अंडर द रूट 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये सम टाइम ऐसे लिखा होता है, एक स्टेप और लिख देता हूँ, x tan इनवर्स x माइनस ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। I think you got this point कि how to integrate किसका, tan इनवर्स। मैं फिर बता दूं, x को tan थीटा पुट किया, डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा d थीटा, तो जैसे ही tan इनवर्स x की जगह थीटा और dx की जगह secant स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन बाय पास में आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो यू नो secant स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव 1 और secant square theta is tan theta. So this is equal to theta into tan theta minus log of secant theta plus c. Just change it in term of x. Theta is tan inverse x, tan theta x. Log of secant is nothing but 1 plus tan square theta under the root 1 plus x square. और ये पावर बेटा इसकी 1/2 बाहर ले। तो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। अगर ये क्लियर हो गया, देखो एक और टाइप यहां से आपको क्लियर करता हूं, ये यही है क्या, e रेज टू पावर x sin x, ठीक है ना, इसी को समझ लेना अच्छे से। और आइलेट, अगर आइलेट के हिसाब से अगर हम बेटा चलते हैं, आइलेट, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दोनों के डेरिवेटिव भी आती है इंटीग्रेशन में, ये कहता है टेक ट्रिग्नोमेट्री एज फर्स्ट एंड एक्सपोनेंशियल एज सेकंड। लेकिन इस वे पे अगर आप देखो दोनों के डेरिवेटिव भी आते हैं, दोनों के इंटीग्रेशन, तो यहाँ इसने e रेज पावर x को फर्स्ट ले लिया और साइन x को एज सेकेंड ले लिया, फिर कर लिया, ठीक है। लेकिन मैंने बताया आप उल्टा भी कर लेंगे, साइन x को फर्स्ट और e रेज पावर x को सेकेंड, अगर ये कॉमन बेसिस। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, जस्ट उस पॉइंट को, ये फर्स्ट और सेकेंड लिया, e रेज पावर x एज यूजुअल साइन x की इंटीग्रेशन यू नो माइनस कॉस x प्लस e रेज पावर x का डेरिवेटिव e रेज पावर x ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वो माइनस बनी तो इसलिए बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस e रेज पावर x cos x। और बेटा ये I1 बन गया, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फिर वैसे ही चलेगा, ठीक है। क्या e रेज पावर x cos x की इंटीग्रेशन साइन x माइनस e रेज पावर x साइन x। मैं इसको आपको अपने आप ही बताता हूँ आगे, तो ज्यादा बेटर है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखो क्वेश्चन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो मैं इसको लिख देता हूँ साइन x इंटू ई रेज टू पावर। मैंने कहा मैं इसमें यही रूल लगाता हूँ, कौन सा, आइलेट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। सो व्हाट यू विल गेट, फर्स्ट फंक्शन एज यूजुअल, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर x वही रहती है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन x यू ऑल नो दैट इज cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज पावर x ही रहेगी डी। ओके बेटे, फर्दर अगेन इंटीग्रेट करो,
साइन एक्स इंटू ई रेज्ड पावर एक्स माइनस, अब देखो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसी को फर्स्ट और इसी को सेकेंड। हुआ क्या, साइन का कॉस बना है और कुछ नहीं हुआ, तो ये प्रोसेस चलता चलेगा। देखना ये ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज यूजुअल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लेंगे तो क्या बनेगी, माइनस बनेगी, कॉस का माइनस साइन, तो मैंने प्लस लगा दिया, फिर साइन एक्स और आगे ई रेज पावर एक्स का फिर से ई रेज पावर एक्स, ये प्रोसेस। अब देखो बेटा हो क्या गया, हमने इंटीग्रेट कर दिया और फिर से मेरे को वही टर्म मिल गई, सेम टर्म, ये देखो साइन एक्स ई रेज पावर एक्स। तो इसको खत्म करने का जो बेटर वे होता है वो यही है, अब आई ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस, इधर भी यही बना ई रेज पावर एक्स कॉस एक्स, और ये प्लस प्लस बाहर से ब्रैकेट ओपन होगी तो बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाहर माइनस है लगा हुआ तो ये माइनस हो। अब आपने क्या करना, ये साई को बेटा ट्रांसफर करना लेफ्ट हैंड साइड, ये भी आई है ये भी आई है, तो लेफ्ट साइड आएगा तो ये 2i बन गया, और राइट हैंड साइड में बेटा ई रेज पावर एक्स कॉमन साइन एक्स माइनस कॉस। सो फ्रॉम हियर आई क्या बन गया, ई रेज्ड पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी अगर आप यहाँ रखेंगे, यहाँ सी डैश कर दो, सी डैश बाई 2 जो है वो फिर से प्लस सी, तो ये बेटा अब इसका आंसर है। तो इसको अच्छे से अब याद रखें, कुछ नहीं होता है, 2 बार इंटीग्रेट होने के बाद सेम टर्म आ जाएगी, बोलने के बाद अदरवाइज आप इसको ऐसे ही करते रहेंगे, भूल नहीं जाना है, इसका मतलब जैसे ही सेम टर्म आई आपने उसको हाईलाइट करना है, फिर कह दो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये स्टेप मिल गया, साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ मतलब माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस हुआ तो ये प्लस हो गया, और यहाँ ई रेज पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स। अब ये बिल्कुल सेम बन गया तो हमने इसको आई लिखा, ये माइनस आई बना तो दूसरी साइड 2i बन गया, और इन दोनों में ई रेज पावर एक्स कॉमन है, तो ये आंसर लो अब मैं वहां ले चलता हूँ, ये क्वेश्चन किया है। तो above integral can be determined by taking sin x as the first function and ex as second, वो मैंने वहां कर दिया, यहाँ ex को फर्स्ट लिया था और sin x को सेकंड, ठीक हो गया, समझ आ गया। अगर इतना बेटा आपको क्लियर हो गया तो यू कैन डू दी होल एक्सरसाइज। मैं ये टाइप ये कल डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है, तो आज आप सिर्फ इतना ही काम करेंगे, ठीक है, कहाँ से करेंगे, एक्सरसाइज में आइए, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताता हूँ। आपने ये फर्स्ट 15 क्वेश्चन, ये फर्स्ट 15 क्वेश्चन कवर हो, कोई भी क्वेश्चन करो, देखो एक्स इंटू साइन है, ट्रिग्नोमेट्री एक्स के री एक्स है, एक्स लॉग एक्स है, आपको सारे बे बता दिए आईलेट के, और यहाँ जहाँ भी ये है नहीं लगेगा पता, जैसे एक्स टेन इनवर्स एक्स है, एक्स साइन इनवर्स एक्स है, मैंने कहा सॉल्व कीजिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी देखना तो मैं देख लीजिए, ठीक है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स को कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स मैंने करवा दिया, एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स आपका ऑलरेडी ये थीटा इंटू, जब टेन इनवर्स एक्स को करते हैं तो उसी में इंक्लूड हो जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखें, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स डी। अब बेटा बड़ा सिंपल वे बताया मैंने, इसको हाईलाइट कर लो, और जो भी इनवर्स के इनको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉस इनवर्स है तो इसको पुट कर लो, एक्स इक्वल टू कॉस, साइन इनवर्स होगा तो साइन, दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव यू नो, यस, माइनस साइन थीटा डी, ठीक हो गया। सो आई इक्वल टू व्हाट इज आई, आई क्या बन गया आपके पास, माइनस आउटसाइड
x की जगह हम लिखेंगे cos थीटा, और cos इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा बेटा? cos इनवर्स x में थीटा, और x की जगह क्या आ गया आपके पास? x की जगह cos थीटा। हैव यू गॉट? और dx की जगह क्या आ गया? माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस तो मैंने बाहर लगा दिया पहले, सिर्फ लेने का मोटिव यही था कि ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन इसको भी मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, इन दोनों टर्मों को कंबाइन कर दूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 2 से। किससे? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या बेनिफिट होगा? ये बन जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बन गया? 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। नाउ सी थीटा इंटू sin 2 थीटा। ये इंटीग्रेशन बेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने x sin x की। ठीक है, चलो जल्दी से अगर स्टेप देखना है तो देख सकते हैं। -1/2 आउटसाइड इक्वल है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन थीटा ही रहेगा आइलेट में, एंड sin 2 थीटा की इंटीग्रेशन बेटा माइनस आएगा, ये माइनस लगा दिया बाहर, cos 2 थीटा और कोएफिशिएंट ऑफ थीटा से डिवाइड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा दैट इज अगेन माइनस, so माइनस माइनस प्लस cos 2 थीटा on 2 d। We got this point? ओके, तो आगे देखिए अब क्या होगा। अब आपके पास यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मैं इसको बाहर लगा दूं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो आगे चलिए मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, छोड़ो, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, ये बन जाएगा थीटा अपॉन 4 cos 2 थीटा। ठीक हो गया, माइनस माइनस, और ये के माइनस अंदर आएगा तो -1/4, और बेटा देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा, इसकी इंटीग्रेशन फिर से, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा? दैट इज sin 2 थीटा अपॉन 2, sin 2 थीटा अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos। ठीक हो गया, और आगे प्लस सी, बस हो गया। थीटा की वैल्यू बेटा पुट कर दो, व्हाट इज थीटा? अब आपने चेंज करना है, तो थीटा इज नथिंग, ये आपके पास क्या पुट किया था हमने? x को cos थीटा पुट किया, तो थीटा हुआ cos इनवर्स x, यहाँ लिखेंगे 1/4 cos इनवर्स x इंटू cos 2 थीटा। बेटा cos 2 थीटा को चेंज करेंगे किसमें? साइन में, तो इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का क्या? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, होता है या नहीं? या दूसरा फार्मूला दे रहा है, 2 फार्मूला, एक साइन में है एक कॉस में, तो आप कॉस में ही लो क्योंकि कॉस आपने पुट भी किया। कॉस में क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर मीन x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/8 हो गया, और sin 2 थीटा का फार्मूला बेटा आपको पता है क्या होता है? 2 sin थीटा, like this. Sin theta means under root 1 minus cos square theta means 1 minus x square. ये हुआ sin theta, और आगे आना था cos theta is x. So plus c. So once again you can see 1/4 is outside, यहाँ भी कट जाएगा, so you will get simply 2x square minus 1 into cos inverse x minus again x into under the root 1 minus x square plus the answer। ठीक है, तो बेटा जहां भी अगर क्लियर ना हो, वंस अगेन सी द रिकॉर्डिंग, क्यों ज्यादा लंबी करनी है। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही होगी तो यू कैन सी, चेक कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट समझा दिया कैसे करने,
तो मैंने बताया आपको ये टोटल कितने फर्स्ट 15 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज के बताए, ये कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल वही रूल पे, जो अगले हैं ये कल कर लेंगे हम। ठीक है, इसको कल डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को ये, और यही इंटीग्रेशन बेटा कंप्लीट आएगी आपके पास है पूरी फुल फ्लैज, यहाँ तक है लास्ट एक्सरसाइज तक, मतलब 7 पॉइंट, अभी ये 8 होगी आई थिंक, 6 है, 7.7 तक आपको कंप्लीट आएगी। तो ये एक टाइप है जो इसका बचा, ये कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा आज, तो फिर कम से कम इतना काम आप कर लें। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर डूइंग योर वर्क एट होम। ठीक है, तो बेटा लाइटली ना लो, कल मैंने आपको सिलेबस रिड्यूस करने का भी जो डिलीट किया है सीबीएसई ने, वो भी डाल दिया है आपके पे, उसको चेक कर लेना मैथमेटिक्स में डिलीट किया हुआ है। तो लेकिन यस, साथ में उन्होंने कहा हुआ है, ऐसा नहीं है कि डिलीट कर दिया, ठीक है फाइनल एग्जाम में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसको डिस्कस करने को भी कहा गया है। ठीक है, इवेलुएट नहीं करना है उस बेस पे, अदरवाइज ठीक है। तो इसलिए आप नज़र जरूर डाल लो कि क्या क्या हमारा डिलीट में चला गया, जो हमारे से फाइनल पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाद में भी हम इसके ऊपर चलो डिस्कशन डिटेल करते रहेंगे कि कौन कौन सी चीजें गई, लेकिन अभी आप लोग बेटा फोकस करेंगे जो आपको बताया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से रिवाइज कीजिए।